یہاں آپ کو بتائیں گے سانحہ گل پلازا خطرے کی گھنٹی پہلے ہی بج چکی تھی۔ چینل 5 نیوز نے سانحہ گل پلازا میں اصل قصورواروں کو بے نقاب کر دیا۔ اہم سرکاری دستاویزات چینل 5 نیوز نے حاصل کر لی ہیں۔ چینل 5 نیوز نے سرکاری نوٹیفیکیشنز کی روشنی میں ذمہ دار اداروں کا تعین کر لیا ہے۔ تفصیلات بیورو چیف 5 نیوز محمد کامران زہری کی اس تہلکہ خیز رپورٹ میں جانیں گے۔ گل پلازا میں جو آگ لگی وہ اچانک نہیں لگی۔ چینل 5 نیوز کے پاس موجود سرکاری نوٹیفیکیشنز اور میٹنگ ریکارڈز بتاتے ہیں کہ خطرے کی گھنٹی پہلے ہی بج چکی تھی۔ بیورو چیف چینل 5 نیوز کامران زہری کی تہلکہ خیز رپورٹ کے مطابق سال 2024 اور 25 میں ڈپٹی کمشنر ضلع ساؤتھ کراچی نے تمام متعلقہ اداروں، افسران، بلڈرز، تاجروں اور سروس فراہم کرنے والے اداروں کو تحریری طور پر آگاہ کیا تھا کہ اگر فائر سیفٹی کے اصولوں پر عمل نہ کیا گیا تو کسی بھی وقت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں واضح کیا گیا تھا کہ کراچی میں متعدد کمرشل پلازے آگ کے لیے خطرناک ہیں۔ سی این جی اور ایل پی جی کے غیر قانونی سلنڈرز جان لیوا ہیں۔ بغیر این او سی کی دکانیں اور پیٹرول پمپس خطرناک ہیں۔ فائر فائٹنگ آلات کے بغیر عمارتیں موت کا جال ہیں۔ الیکٹریکل شارٹ سرکٹ بڑے سانحے کو جنم دے سکتا ہے۔ یہ سب کچھ تحریری نوٹیفیکیشن میں موجود تھا۔ سوال نمبر 1، فائر سیفٹی آڈٹ کہاں گیا؟ نوٹیفیکیشن میں لکھا گیا تھا کہ ضلع ساؤتھ میں فائر سیفٹی آڈٹ کیا جائے گا۔ اس کی ذمہ داری دی گئی تھی فائر سیفٹی ٹیکنیکل کمیٹی کو، تمام اسسٹنٹ کمشنرز کو، محکمہ سول ڈیفنس کو اور چیف فائر آفیسر کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کو۔ سوال یہ ہے کہ اگر آڈٹ ہوا تھا تو گل پلازا میں خطرات کیوں باقی رہے؟ سوال نمبر 2، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے کیا کیا؟ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا تھا کہ عمارتوں میں فائر فائٹنگ آلات چیک کیے جائیں، ایمرجنسی راستے یقینی بنائے جائیں، بغیر حفاظتی انتظامات این او سی نہ دیے جائیں۔ گل پلازا میں یہ سب موجود تھا یا نہیں؟ اور اگر نہیں تو اجازت کس نے دی؟ سوال نمبر 3، سول ڈیفنس اور پولیس نے اپنی ذمہ داری کیوں پوری نہیں کی؟ ایڈیشنل ڈائریکٹر سول ڈیفنس ضلع ساؤتھ، سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ساؤتھ اور سٹی کو واضح طور پر کہا گیا تھا کہ سی این جی اور ایل پی جی کے غیر قانونی سلنڈرز ختم کیے جائیں، خطرناک دکانیں سیل کی جائیں۔ اگر کارروائی ہوئی تھی تو غیر محفوظ حالات کیوں باقی رہے؟ سوال نمبر 4، فائر بریگیڈ کہاں تھی؟ چیف فائر آفیسر کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کو معلوم تھا کہ کون سی عمارتیں خطرناک ہیں۔ کیا خطرناک عمارتوں کی فہرست تیار کی گئی؟ اور اگر کی گئی تو اس کارروائی کا اثر کیوں دکھائی نہیں دیا؟ اس پر عمل کیوں نہ ہوا؟ سوال نمبر 5، کے الیکٹرک اور سندھ انرجی ڈپارٹمنٹ کا کردار کیوں نظر نہیں آیا؟ نوٹیفیکیشن میں لکھا تھا کہ کے الیکٹرک اور سندھ انرجی ڈپارٹمنٹ مل کر شارٹ سرکٹ کے خطرات ختم کریں گے۔ اگر شارٹ سرکٹ ایک بڑا خطرہ تھا تو اس کی جانچ کیوں نہ ہوئی؟ سوال نمبر 6، سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی سیپا کو اپنا کلیئرنس سرٹیفکیٹ ہر ماہ اور ہر نقشے کی منظوری سے قبل جاری کرنا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ این او سی جاری کی گئی تو پھر یہ حادثہ کیسے ہوا؟ کیا سیپا نے جعلی این او سی جاری کی یا شہریوں کی جان و مال کو رشوت کے عوض خطرے میں ڈال دیا گیا؟ سوال نمبر 7، سندھ امپلائیز سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن کیوں غافل رہا؟ سی سی کا بنیادی کام نجی اداروں کے ورکرز کی تعداد، ان کے سیفٹی اور ہیلتھ کے معاملات کا خیال رکھنا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اگر کوئی ادارہ حفاظتی اصولوں پر عمل نہ کرے تو سی سی اسے سیل کرنے کا پابند ہے۔ سوال یہ ہے کہ سیپا نے اصل اعداد و شمار اور سیفٹی آلات کو نظر انداز کر کے سرٹیفکیٹ کیسے جاری کیا؟ اور اگر سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوا تو یہ ادارہ اپنی کاروباری سرگرمیاں کیوں کر جاری رکھ سکا؟ کیا یہاں بھی رشوت اور چند سکوں کے عوض تمام اصول فروخت کیے گئے؟ چینل 5 نیوز کے بیورو چیف کامران زہری کی سنسنی خیز رپورٹ کے مطابق یہ تمام ادارے اور افسران میٹنگ میں شریک تھے اور انہیں تحریری نوٹیفیکیشن بھی ملا۔ ان میں ڈپٹی کمشنر ضلع ساؤتھ کراچی، اسسٹنٹ کمشنر سول لائنز صدر گارڈن آرام باغ اور لیاری، سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ساؤتھ، سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سٹی، ایڈیشنل ڈائریکٹر سول ڈیفنس ضلع ساؤتھ، چیف فائر آفیسر کے ایم سی، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، کے الیکٹرک، سندھ انرجی ڈپارٹمنٹ، سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی، سندھ امپلائیز سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن، کینٹونمنٹ بورڈ کلفٹن، کراچی کینٹونمنٹ بورڈ، میونسپل کمشنرز صدر اور لیاری، صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، کے ایم سی لینڈ ڈپارٹمنٹ، کچی آبادی ڈائریکٹریٹ،
पाकिस्तान रेंजर्स, रेस्क्यू 1122, सुई सदर्न गैस कंपनी, बिल्डर्स और ताजिर नुमाइंदे शामिल थे। नोटिफिकेशन मौजूद था, खतरात वाजे थे, जिम्मेदार इदारे नामजद थे, इजलास हो चुके थे। इसके बावजूद गुल प्लाजा जल गया। ये हादसा सिर्फ एक वाकया नहीं, नाकाम अमल दरामद और मुमकिना गफलत या बदउनवानी का नतीजा है। ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज कमरान जहरी की रिपोर्ट के मुताबिक अब वक्त है कि हर इदारे से पूछा जाए, आपने नोटिफिकेशन के बाद क्या किया। ये रिपोर्ट इल्जाम नहीं लगा रही बल्कि रिकॉर्ड्स की बुनियाद पर सवालात उठा रही है। चैनल 5 न्यूज दस्तावेजात के साथ जिम्मेदारों का एहतसाब जारी रखेगा ताकि मुस्तकबिल में कोई और ऐसा हादसा न हो। सिंध हाई कोर्ट ने शहर के एक निहायत संगीन और हसास मामले पर जिम्मेदार सरकारी इदारों को बराह रास्त कचहरी में खड़ा कर दिया। चैनल 5 न्यूज सबसे पहले अपने नाज़रीन के सामने बड़ा अदालती हुक्मनामा सामने ले आया, जिसमें अदालत ने वाज़ेह कर दिया कि शहर कराची लावारिस नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने एक अहम आईनी दरखास्त को बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर लिया, जो बैरिस्टर हसन खान की जानिब से दायर की गई थी। अदालत ने फौरी नोटिस लेते हुए हुकूमत सिंध समेत कराची के तमाम बड़े और जिम्मेदार इदारों को नोटिस जारी करते हैं। अदालत आलिया ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अब मामला सिर्फ फाइलों, इजलासों और बयानात तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि हर इदारे को अपनी कारकर्दगी, जिम्मेदारी और कोताहियों का जवाब देना होगा। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से हुकूमत सिंध को चीफ सेक्रेटरी के जरिए, सिंध लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सेक्रेटरी के जरिए, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को मेयर कराची के जरिए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को डायरेक्टर जनरल के जरिए, सिंध फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू डिपार्टमेंट को डायरेक्टर के जरिए, होम डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध और एडवोकेट जनरल सिंध को भी बाकायदा नोटिस जारी किए गए हैं। अदालत ने तमाम इदारों को हिदायत की है कि वो 10 फरवरी 2026 तक वाक़े से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट्स और पैरावाइज जवाबात अदालत में जमा कराएं। अदालत ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि अगर किसी इदारे ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना किया तो केस यकतरफा तौर पर सुना जाएगा। ये मुकदमा अब एक आम आईनी दरखास्त नहीं रहा, बल्कि कराची में निजाम निगरानी, मंजूरियों और हिफाजती इक़दामात पर बराह रास्त सवाल बन चुका है। अब देखना यह है कि कौन सा अदारा क्या जवाब देता है और किसकी गफलत अदालत के सामने आती है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने गुल प्लाजा का दौरा किया और आतिश ज़दगी के सानहे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे अफसोस का इजहार किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जाम कमाल ने कहा कि गुल प्लाजा का वाक़या एक बहुत बड़ा सानहा है। सूबाई हुकूमत, ज़िले इंतजामिया और तमाम हुकूमती मशीनरी मुतासिरीन के साथ खड़े हैं। वफाकी वज़ीर तिजारत का कहना था कि वज़ीर आज़म ने खुसूसी हिदायत जारी की कि मुतासरा अफराद से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया जाए, जबकि वाक़े की तहकीकात और मुमकिना अजाले के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जहां जहां कमजोरियां सामने आईं उन्हें दुरुस्त करना नागुज़ीर है। आइंदा दिनों में सूबाई हुकूमत और मेयर कराची इस हवाले से अमली इक़दामात करेंगे। जाम कमाल ने मजीद कहा कि वफाकी हुकूमत अपनी तमाम जिम्मेदारियां निभाएगी और सिंध हुकूमत के साथ मिलकर मुकम्मल ताउन करेगी। उनका कहना था कि कराची से उनकी ज़ाती वाबस्तगी है और शहर के मसाइल के हल के लिए वफाक ताजिर बरादरी के साथ खड़ा रहेगा। वफाकी वज़ीर तिजारत ने यकीन दिलाया कि मुतासरा खानदानों और ताजिर बरादरी को तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा और वफाकी सतह पर हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने सानहा गुल प्लाजा पर वज़ीर आला सिंध से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए 1 फरवरी को कराची में मिलियन मार्च का ऐलान कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सारे डिस्ट्रिक्ट में लोगों को दावत देंगे। क्या कराची के लोग कभी तो आग कभी गटर में गिरते रहेंगे? वज़ीर आला सिंध को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि आर्मी चीफ ने कहा था कराची में एक सिस्टम काम करता है, वो सिस्टम इस्लामाबाद चला गया, तो अब किससे गिला करेंगे? जो कराची में इस माफिया को लाए हैं वही इसका सफाया करेंगे। कराची में बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी काम करती तो सानहा गुल प्लाजा रूनुमा ना होता। उन्होंने कहा कि पानी बुझाने वाली गाड़ियां देर से गुल प्लाजा पहुंची, फिर गाड़ियों में पानी और डीजल नहीं था, फायर फाइटर्स के पास किट्स नहीं थी। सिंध हुकूमत वाले हजारों अरब रुपए खा गए, लेकिन फायर फाइटर्स को जदीद आलात नहीं दे सके। 3,360 अरब रुपए कहां गए?
और यहाँ अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे, कराची में एक बार फिर स्ट्रीट क्राइम की संगीन वारदातें सामने आ गई हैं। जेल चौरंगी के करीब मोटरसाइकिल सवार डाकू 62 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के दौरान एक बेगुनाह राहगीर शदीद जख्मी भी हुआ, जिसे फौरी तौर पर जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अहम खबर देने अपने नाजरीन को, कराची में एक बार फिर स्ट्रीट क्राइम की संगीन वारदातें सामने आ रही हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है चीफ क्राइम रिपोर्टर फैजान खानजादा ने। फैजान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? ये कराची का इलाका है जेल चौरंगी करीब डकैती की संगीन वारदात में मोटरसाइकिल सवार से डाकू 62 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। ताकि पुलिस काम के मुताबिक फायरिंग के दौरान फिल्टर प्लांट में काम करने वाले मुबैना 25 साल राहगीर वकार अहमद शदीद जख्मी हो गए हैं, जिसके बाद जिसे फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम जख्मी नौजवान अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गए। पुलिस का ये कहना है कि मुतासरा शहरी क्लिफ्टन के एक निजी बैंक से बड़ी रकम लेकर गाड़ी की अदायगी के लिए जेल चौरंगी के करीब कार शोरूम पर पहुंचा था। जैसे ही शहरी ने गाड़ी से रकम निकाली, पहले ही पीछे करने वाले डाकुओं ने फायरिंग कर दी। ताहम रकम लूटकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने वाकई की तफ्तीश शुरू कर दी है। अतराफ की सीसीटीवी कैमरों की मदद से मुल्जिमान की तलाश भी जारी है। जी, बहुत शुक्रिया फैजान, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। अपने नाज़रीन को बता रहे थे कि कराची में एक बार फिर स्ट्रीट क्राइम की संगीन वारदातें सामने आ गई हैं। जेल चौरंगी के करीब मोटरसाइकिल सवार डाकू 62 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के दौरान एक बेगुनाह राहगीर शदीद जख्मी भी हुआ, जिसे फौरी तौर पर जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 40 से 45 मिनट बाद गुल प्लाजा पहुंची। वफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा कि गुल प्लाजा गलियों में नहीं, एम जिना रोड पर वाक़ है। गुल प्लाजा से कुछ ही फासले पर अहम तरीन शख्सियात के घर और दफातर हैं। गुल प्लाजा में रात 10:22 पर आग लगी। जिस जगह आग लगी वहां से 1 किलोमीटर पर फायर टेंडर मौजूद था। इतने करीब फायर टेंडर मौजूद होने के बावजूद इतनी ताखिर से क्यों पहुंचा? गुल प्लाजा से चंद कदम के फासले पर DC ऑफिस था। कर रहे हैं। सबसे पहले जो लोग शहीद हुए उनको खराज अकीदत, उनके लवाकिन के दुख दर्द में शरीक, जो लोग ज़ख्मी हुए उनके लिए दुआ गो, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। साथ साथ फायर फाइटर फुरकान यस, उसको ज़बरदस्त खराज अकीदत कि उसने अपनी जानों का नजराना दिया, लोगों को बचाया, कई ख़वातीन को बचाया, बच्चों को बचाया, नौजवानों को बचाया, लेकिन जाम शहादत पाई। उसको ज़बरदस्त खराज अकीदत। अंग्रेज़ी में एक मुहावरा है कि लाइक द फादर लाइक द सन। मैं आपके तवज्जुह से बताना चाहूँगा कि उसके वालिद साहब ने भी बिल्कुल इसी तरीके से अपने दौर में भी लोगों को रेस्क्यू किया था और जहां में शहादत नोश फरमाई थी एज ए फायर फाइटर के तौर पर। तो वो जिसे कहते हैं कि जैसा बाप वैसा बेटा, तो ये अपनी जगह पे चीज़ थी। जनाबे वाला, आज से 2 दिन पहले रात के 10:15 पर गुल प्लाजा पे आग लगती है। अफसोसनाक बात क्या है कि तकरीबन 40-45 मिनट के बाद फायर टेंडर वहां पर पहुंचता है। फायर टेंडर जिस जगह पे आग लगी थी उससे 1 और 1.5 किलोमीटर के फासले पर गार्डन फायर टेंडर स्टेशन मौजूद था। मैं हैरान हूं, परेशान हूं कि 40-45 मिनट कैसे लगा। आग बुझाना शुरू करते हैं, मेरा ख्याल है कुछ ही देर के बाद पानी खत्म हो जाता है। क्या मेरा सवाल ये है, क्या आग इंतजार करती है, क्या पानी लेकर आओ मैं दोबारा जलूंगी? ये आग हमारे दिलों में लगी है। आज की कार्रवाई मुअत्तल की जाए। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि कराची में कौमी सानिया हुआ, 40 से ज्यादा अफराद शहीद हो गए, वो भी पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान को बचाना है तो कराची को बचाना होगा। पे में लगी हुई है। अगर आप ये आग अब गुल प्लाजा
میں نہیں، ہمارے دلوں میں ہے، کراچی کے ہر شہری کے دل میں ہے، اور یہ دل سے نکلی. ابھی یہ آگ کراچی کے علاقوں میں نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ کراچی کے چپے چپے میں لگی ہوئی ہے. اگر آپ کی بینائی ہے، آپ کی بصیرت ہے، تو آپ دیکھیں گے. اگر آپ کی چشم بینا نہیں ہے تو آپ نہیں دیکھیں گے، اور اللہ نہ کرے وی اگین بی کاٹ انویز. پھر ایک حادثہ ہوگا، پھر اچانک جو ہے وہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں. حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، کسی پہ ڈال دیں کسی پہ ڈال دیں. گزشتہ 18 سالوں سے بلا شرکت غیر حکمرانی ایک پارٹی کے پاس ہے، جس کے پاس کراچی کا مینڈیٹ نہیں، دہی سندھ کا مینڈیٹ ہے. پھر بھی ہر شہری کی تقدیر کا فیصلہ وہ کر رہے ہیں. یہ کیسی جمہوریت ہے؟ یہ کیسی ڈیموکریسی؟ اسپیکر صاحب، کسی شہر کو کالونی بنایا جائے، یہ جنگل سے بھی بدترین حالات ہیں. SOS کال ہے، اس کا نوٹس لیں، گل پلازا کی آگ بجھائیں، تحقیقات کریں، اعلیٰ سطحی جوڈیشل تحقیقاتی کمیشن بنائے، تنظیم انجمنوں تاجر انجمنوں کے ساتھ بیٹھ کے SOPs بنائے، اپنی اسٹینڈنگ کمیٹیوں کو فعال بنائے، پیکیج کا مناسب انتظام کریں، اور کراچی چیمبر آف کامرس کو، تنظیموں کو بورڈ پر لے کر جو ریپیئر کا کام ہے، دوبارہ مارکیٹ کو بنانے کا، عمارت کو، اور جو نقصان کا ازالہ کر رہا ہے، اس کے لیے کراچی چیمبر آف کامرس اور جو متعلقہ یہ جو تنظیم ہے ان کو جو ہے اپنے ساتھ ملائیں. IMQM مل کر سندھ کے حقوق کی لڑائی لڑتے ہیں. وفاقی وزیر قادر پٹیل نے کہا کہ کراچی پر 10 سال تک جماعت اسلامی حکمرانی کرتی رہی. وفاق سندھ حکومت کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کر رہا ہے. آپ آج کہہ رہے ہیں ہم سب کو ساتھ مل کر چلنا چاہیے. آپ نے کہا ہم چور ہیں، تو پھر چور آپ سے کیا بات کریں؟ ہمیں سب کو مل کر چلنا چاہیے، یہ ایک جملہ بنتا ہے. تو میں کیسے سمجھاؤں اس بات کو کہ ہم تو گزشتہ 10 سال سے آپ سے یہی کہہ رہے ہیں، 8-9 سال سے. یہ الگ بات ہے کہ آج آپ یہ کہنے پہ مجبور ہوئے ہیں کہ ہمیں سب کو مل کے چلنا چاہیے، ورنہ ہم نے تو پہلے روز جب آپ کی حکومت بنی اس وقت بھی کہا، جب کووڈ آیا تو میرے چیئرمین نے اس وقت بھی کھڑے ہو کر کہا، جب ابھی نندن والا واقعہ ہوا تو اس وقت بھی ہم نے آپ کو آفر کی، جب ملک کی معیشت پہ زوال آیا تب بھی ہم نے آپ سے یہی بات کی، لیکن آپ نے کہا کہ آپ چور ہو. اب سر چور آپ کے ساتھ کیا بات کریں؟ ہم چور کی اوقات کیا ہوتی ہے؟ چور کیا کرے؟ ڈاکو کیا کرے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ تو جو شاہوں کے کام ہے سر وہ شاہ کرے، باقی تو رہ گئے چور ڈاکو کی اوقات ہی نہیں ہوتی تو وہ کیا کام کرے گا. یہ الگ بات ہے کہ آج آپ کو وہ سارے چور چاہیے بھی، نظر بھی آ رہے ہیں، ڈاکو بھی بھائی بننے لگے ہیں، چور بھی آپ کو محترم لگنے لگے ہیں. یہ حالات پر ہوتا ہے. تو میں اس میں صرف یہی کہوں گا کہ ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تمام لاپتہ افراد کے ملنے تک ریسکیو آپریشن مکمل نہیں ہوگا. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی رات گئے گل پلازا آمد. کہا ہمارے ادارے ریسکیو آپریشن کے لیے موجود ہیں. 20 کے قریب لاشوں کی شناخت ہو چکی. عمارت کی منظوری 1998 میں دی گئی تھی. کچھ بے ضابطگی تھی جس کو ختم کرنے کے لیے ریگولائز کیا گیا. کافی سوالات جنم لیتے ہیں. کل اس رپورٹ کو KMC کی ویب سائٹ پر نشر کروں گا. جیسے کئی قبرستان آج بھی بن رہے ہیں، موجود ہیں اور بنائے جا رہے ہیں. تو ایک کچھ ڈاکومنٹ سامنے آئے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 1980 کے اندر بلڈنگ کی تعمیر کی گئی تھی، جبکہ اس کو 2023 میں ریوائز کر کے اس کی ریگولائزیشن کی گئی. اس میں 179 کے قریب اضافی دکانیں بنائی گئی. تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی گل پلازا نہیں، گل قبرستان بنا رہی ہے شہر کے اندر. اور اس جیسے کئی قبرستان آج بھی بن رہے ہیں، موجود ہیں اور بنائے جا رہے ہیں. تو ایز اے ترجمان سندھ حکومت آپ اس کے اوپر کیا؟ میں گزارش کروں، آپ کو تھوڑے سے آپ کے نمبر درست نہیں ہیں. اس بلڈنگ کا غالباً اپروول جو ہے وہ 1998 میں 1998 میں دیا گیا تھا، 1980 میں نہیں. اس کے بعد اس بلڈنگ کے اندر بے ضابطگی تھی، کچھ غیر قانونی تعمیرات کی گئی تھی، جس کے لیے جو بلڈر تھا اس نے ریگولرائزیشن کے لیے اپلائی کیا اور اس نے اپنی اللیگیلٹیز کو ریگولرائز کیا، جو کہ غالباً اپریل 2003 میں اس وقت کی جو حکومت تھی، انتظامیہ تھی، انہوں نے اس بات کی اجازت دی، جس کے تحت غالباً 1021 دکانیں اس میں بنی. جو مجھے یہاں پہ ایسوسیشن نے بتایا، جو لوگوں نے بتایا ہے کہ 1200
दुकानें थी, यानी कि कोई 180 के लगभग इजाफी दुकानें भी थी। तो ये सवालात बिल्कुल जन्म देते हैं जो कि कमिश्नर कराची की रिपोर्ट में आएंगे कि एक्चुअल प्लान क्या था, उसमें बेज़ाब्तगियाँ क्या हुई, रेगुलराइज क्या हुआ, और रेगुलराइज होने के बाद भी इजाफी दुकानें क्यों बनी। इन तमाम चीज़ों को देखा जाएगा और जब रिपोर्ट फाइनलाइज हो जाएगी उस रिपोर्ट को आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि फायर सेफ्टी ऑडिट के हवाले से जो हमने KMC ने अपनी एक रिपोर्ट मुरतब की थी वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास मौजूद है, इंतज़ामिया के पास मौजूद है। मैं चाहूँगा कि जैसे ही इस क्राइसिस से हम निकलते हैं तो हमारे फायर वाले भी उनके साथ उनकी मदद तो करेंगे, मुआवनत करेंगे, लेकिन बिल्डिंग कंट्रोल का जो महकमा है वो इस हवाले से फौरी तौर पर काम स्टार्ट करे ताकि अल्लाह ना करे कोई खुदा ना खास्ता इस तरह की जो चीज़ है उसको एड्रेस किया जा सके। बल्कि मैं कल उस रिपोर्ट को KMC की वेबसाइट पर भी नशर कर दूंगा ताकि जो लोग हैं उसको देख सकें और जिन जिन की बिल्डिंग है वो देख सकें कि उनकी बिल्डिंग के अंदर ये बेज़ाब्तगी है, उनकी दुकान में या उनके दफ्तर में ये बेज़ाब्तगी है, उसको वो एड्रेस करें, उसको ठीक करें। और जहाँ जहाँ फायर सेफ्टी एग्ज़िट बनाने की ज़रूरत है वो फायर सेफ्टी एग्ज़िट भी बनाएं, बिल्डर बनाए, वहाँ की इंतज़ामिया बनाए, बिल्डिंग कंट्रोल उसको सुपरवाइज़ करे और हर दुकानदार भी अपनी दफ्तर में, अपनी दुकान के अंदर जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट होता है उसको रखे ताकि इस तरह का कोई जो बड़ा नुकसान है उसको अवॉइड करने में हम कामयाब हो पाए। मतलब एग्जाम्पल कब सेट किया जाएगा? शहर में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मौत बांट रही है और ये कोई पहला वाकया नहीं, इसकी गफलत दूसरे महकमों में जाती है। आज फायर ब्रिगेड के ऊपर लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो देर से पहुँचे, मगर असल जो कसूरवार लोग हैं वो कब तक बचेंगे? कब तक उनको सजाएं नहीं दी जाएंगी? बजाज इस वक्त यहाँ कौन खड़ा हुआ है? KMC खड़ी हुई है, मेयर खुद खड़ा हुआ है, हमारी इंतज़ामिया खड़ी है, ये फायर वर्कर्स खड़े हुए हैं, तो हम तो मौजूद हैं। अब जहाँ कमी कोताही है वो रिपोर्ट के अंदर सामने आ जाएगी, मंजर आम पे आ जाएगी। उसके बाद जो कार्रवाई करने की ज़रूरत है वो कार्रवाई की जाएगी। आसान काम नहीं होता, मुश्किल काम होता है, बहुत सारी माफियाज़ हैं, उनका सामना करना पड़ता है। हम तैयार हैं उन तमाम चीज़ों के लिए और वज़ीर आला सिंध ने वाज़े तौर पर ये अहकाम जारी किए हैं कि जहाँ जहाँ इस तरह की बेज़ाब्तगी है उसको फौरी तौर पर एड्रेस किया जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लाशें निकाली जा रही हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि जो लोग लापता हैं उनके अहले खाना को कहा गया DNA दे ताकि शनाख्त हो सके। जो लाशें शनाख्त के काबिल नहीं उनकी शनाख्त DNA से की जा रही है। वजीर आला सिंध ने जो कमेटी बनाई है वो एक एक चीज को देखेगी, जो भी महरिकात सामने आएंगे वो सबको बताए जाएंगे। पूरे मुल्क की 90% बिल्डिंग्स में फायर अलार्म और एग्जिट नहीं है। खिलौनों की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थे, इन चीजों में बैटरीज होती हैं। ने चैनल 5 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने कमेटी बना दी है। इस कमेटी के बनने के बाद 2 से 3 रोज में आग लगने की वजूहात सामने आएंगी। कल हमने इस कमेटी का इजलास तलब कर लिया है जिसमें आग लगने और ऑपरेशन को किस तरह आगे लेकर चलना है, हमारा अभी सारा फोकस रेस्क्यू पर है। कमिश्नर कराची ने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। कि वी डोंट वांट टू गेट इनटू एनी इंक्वायरी आज ही कॉन्स्टिट्यूट हुई है और अगले 2-4 दिन में इसमें बहुत सारे फैक्ट सामने आ जाएंगे। अभी तक तो हमारा फोकस रेस्क्यू के ऊपर है और रिलीफ प्रोवाइड करने के ऊपर है, लेकिन इंक्वायरी के लिए इंशाल्लाह ताला सारे ऑफिसर्स को एंगेज करके वी वुड बी एबल टू गिव यू फैक्ट्स मे बी आफ्टर कपल ऑफ डेज। जैसे आज सुबह भी CM साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भी डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल जारी है, तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। 85 अफराद की अब तक गुमशुदगी हेल्प डेस्क पर रिपोर्ट हुई है। 27 अफराद की डेथ अब तक कंफर्म हो चुकी है। DNA के लिए 52 फैमिलीज ने अब तक नमूने जमा करा दिए। जावेद नबी खोसो ने बताया कि हमारी कोशिश है कि शनाख्त का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल हो। लवाहिकीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह से उम्मीद है कि कोई हमें मलबे से जिंदा मिल जाए। उन्होंने कहा कि रंपा प्लाजा की मजबूती से मुतालिक SBCA से रिपोर्ट मांग ली। SBCA की रिपोर्ट की बुनियाद पर रंपा प्लाजा से मुतालिक फैसला करेंगे। डिप्टी कमिश्नर जिला जुनूबी ने मजीद कहा कि गुल प्लाजा की इमारत का एक हिस्सा इंतहाई कमजोर हो चुका है। ताजरों से अपील करता हूं, इमारत के कमजोर हिस्से से दूर रहें। शहरी लापता अफराद की निशानदही हमारी डेस्क या नंबर पर
रिपोर्ट करें। ऑपरेशन मुकम्मल होने में वक्त दरकार है, एहतियात के साथ मलबा उठाने का काम कर रहे हैं। गुल प्लाजा का कोई भी दुकानदार कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, हम अपना हक लेकर रहेंगे। सदर गुल प्लाजा तनवीर पाशा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सिंध हुकूमत ने जो वादा किया वो इससे पूरा करेंगे। आप सबका ताउन हमारे साथ है। हाथ फैलाता ना कभी हाथ फैलाएगा, देने वाले हक लेगा और अपना हक ले चुका है। सिंध गवर्नमेंट ने जो कमिटमेंट कर लिया है, आज भी परफॉर्मा बन रहा है, दुकानदारों को दिया जाएगा। और जो लवाकिन के लिए ऐलान हुआ है, दुकानदारों का भी मसला सिंध गवर्नमेंट ने हल अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया है। बट वफाक से हम अपील करते हैं, गुल प्लाजा का कोई भी दुकानदार, अदना से एक सेल्समैन भी है ना, एक सेल्समैन भी मरना पसंद करेगा, किसी के सामने हाथ इंशाल्लाह नहीं फैलाएगा। आप आए हैं, आपकी सपोर्ट हमारे साथ खड़ी है, आपका साथ खड़ा है, तो हम एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं मिलके। इंशाल्लाह ताला दुआ कीजिएगा कि जो भी लोग यहाँ से जो शहीद हुए हैं, उनकी फैमिली को हम मुतमईन तो नहीं कर सकते। किसी का बच्चा अगर गया है तो उसको हम समझा नहीं सकते कि तुम्हारा बच्चा शहीद हो गया, तुम मुतमईन हो जाओ, ये पैसे ले लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। सौदा नहीं कर सकते, पर कम से कम इतनी भरपाई थोड़ी कर सकते हैं कि कोई 3 बहनों का एक भाई है, उसकी बहनों के लिए काम आ जाएगा। उनका भाई चला गया, उसकी शादी है, ये चीज़ है। किसी का बच्चा चला गया, एक कमाने वाला 4 खाने वाले, ये चीज़ है। हम मेहनत इसके लिए हमने करनी है, मगर हम कोई भीख नहीं लेंगे, हम अपना हक लेंगे और मिल रहा है, और इंशाल्लाह इज्जत से मिलेगा। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहे इस मॉल को वापस खड़ा भी करेंगे और सारे काम होकर बहुत जल्द होंगे इंशाल्लाह ताला। आपकी सपोर्ट साथ रहेगी, बढ़ चढ़ के और अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान पर वफाकी हुकूमत ने थर पारकर में ख़वातीन और बच्चों के लिए 200 बिस्तरों के अस्पताल की तामीर की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्लानिंग कमीशन और वफाकी वज़ारत मनसूबाबंदी और तरक्यात की प्री-CDWP के इजलास में दी गई है, जिसके मिनट जारी कर दिए गए। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे शकील नाइच से। शकील नाइच, बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? ये देखें, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ 3 साल पहले थर पारकर का दौरा किया था और उन्होंने ऐलान किया था कि थर पारकर में खवातीन और बच्चों के लिए 200 बिस्तर पर मुश्तमिल एक अस्पताल तामीर किया जाएगा। प्लानिंग कमीशन 3 साल के बाद ख्वाब खरगोश से बेदार हुई है और अब उन्होंने इस बात की मंजूरी दे दी है जो CDWP के इजलास से कबल दे दी गई है। इसको प्री-CDWP कहा जाता है। सिंध हुकूमत और वफाकी वजारत जो सेहत है, ये मिलकर इस सिलसिले में अपनी कारकर्दगी बनाएंगे, हिकमत अमली बनाएंगे और इस सिलसिले में जो जमीन वगैरह लेना है उसका भी इंतजाम किया जाएगा। ये अस्पताल जो थर पारकर का हेडक्वार्टर है मुखी, उसमें तामीर किया जाएगा और उसके लिए जो है वो प्लानिंग कमीशन ने महकमा सेहत से इस सिलसिले में तमाम तफसीलात भी उन्होंने जो है तलब कर ली है। इस इजलास का जो हुआ है उसके मिनट्स भी महकमा सेहत हुकूमत सिंध को अरसाल कर दी गई, जिसमें कहा गया कि इसमें तमाम और वो भी वफाकी हुकूमत देगी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी वफाकी हुकूमत बना के देगी। उन्होंने कहा इस सिलसिले में हुकूमत सिंध से ये गुजारिश की गई है कि जो उनका अपना इदारा महकमा मनसूबाबंदी व तरक्यात, उसको कहा जाए कि इस सिलसिले में PC1 या दीगर जो जरूरी दस्तावेजात है उसकी तैयारी में मदद दे दे और ऐसा नॉन डुप्लीकेशन, यानी ऐसा ना हो कि एक कोई वार्ड वगैरह बने और फिर उसका डुप्लीकेट बने। तो उन्होंने कहा उसको डुप्लीकेट से बचने के लिए भी इस तरह के इक़दाम किए जाए ताकि ये अस्पताल जो है वो 2 साल के अंदर मुकम्मल किया जा सके। और इस सिलसिले में महकमा सेहत से भी कहा गया कि इस सिलसिले में अपना होमवर्क तैयार करके प्लानिंग कमीशन को दे दे ताकि इस मंसूबे जल्दी मुकम्मल किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया शकील नाइच, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। मरकजी मुस्लिम लीग कराची के सदर अहमद नदीम आवान ने गुल प्लाजा का दौरा करके जारी रेस्क्यू ऑपरेशन का तफसीली जायजा लिया और रजाकारों की मेहनत को सराहा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुल प्लाजा नहीं बल्कि कराची के शहरियों का दिल जला है। हुक्मरानों की गफलत ने अवाम को एक बार फिर मायूस किया। मरकजी मुस्लिम लीग के रजाकारों ने रात गए क्रेन की मदद से शहरियों की दर्जनों गाड़ियां छत से उतार कर बाहिफाजत मालिकान के हवाले की, लेकिन नाअहल 23 घंटे के बाद आने वाला नाम निहाद मेयर मरकजी मुस्लिम लीग के कामों का भी क्रेडिट लेने में मसरूफ है। हम कहते हैं कि क्रेडिट आप ले लें, हमें अवाम की खिदमत करने दें। क्रेडिट की जंग लड़ने वालों को कराची की अवाम कभी माफ नहीं करेंगे। अब कराची वालों को खड़े होकर अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना होगा।
वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद हुआ है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले टाउन चेयरमैन ने शिरकत की है। इजलास में लाला अब्दुल रहीम, जान मोहम्मद बलोच, तारिक अजीज बलोच, हाजी नवाज बरोही, हाजी जमील ज़ियाद समेत सेक्रेटरी बल्दियात, DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, MD सिंध सॉलिड वेस्ट और दीगर इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। इजलास में तमाम टाउन चेयरमैन ने अपने अपने टाउन में बल्दियाती नुमाइंदों को दरपेश मसाइल से वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह को तफसीली तौर पर आगाह किया। इजलास में तमाम टाउन चेयरमैन ने खुसूसी तौर पर कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन से मुतालिक मसाइल, पानी और सीवरेज की सूरत हाल और दीगर बल्दियाती सर्विस फराहम करने वाले इदारों से जुड़े अवामी मसाइल पर गुफ्तगू की। इस मौके पर वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने मसाइल के हल के लिए संजीदा इक़दामात के हवाले से मुतल्लिका इदारों को पाबंद करने की यकीन दहानी कराई है। गुल प्लाजा MA जिन्ना रोड में पेश आने वाले अफसोसनाक आतिशज़दगी के वाक़े के बाद सदर टाउन इंतजामिया की जानिब से मुतासरीन की मदद के लिए फौरी तौर पर एक तिबी कैंप कायम किया गया। इस मौके पर चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने मेडिकल कैंप का दौरा किया, तिबी सहूलियात का जायजा लिया और मुतासर अफराद से मुलाकात की। चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने इस अफसोसनाक वाक़े पर रंजो गम का इजहार करते हुए कहा कि सदर टाउन इंतजामिया इस मुश्किल घड़ी में मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। उन्होंने मुतल्लिका अमले को हिदायत की कि मुतासरा अफराद को बर वक्त और मौसर तिबी इमदाद फराहम की जाए। चेयरमैन सदर मंसूर शेख ने मजीद कहा कि सदर टाउन की जानिब से रिलीफ और बहाली के इक़दाम जारी रहेंगे और मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाएगी। चेयरमैन ने इस अज़्म का इजहार भी किया कि सदर टाउन इंतजामिया अवाम के दुख सुख में बराबर की शरीक है और इस आजमाइश की घड़ी में मुतासरीन के शाना बशाना खड़ी है। वेलकम बैक। अब आपको बताएंगे म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद एनजी खान ने मुतवक्के बरसात के हवाले से मरासला जारी कर दिया। मरासले में मौसम सरमा में मुतवक्के शदीद बारिशों के मौके पर वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन और टाउन इंतजामी को ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। मरासले में कहा गया है कि बरसात से कबल तमाम नालों की सफाई, इमरजेंसी की सूरत में गाड़ियों की मौजूदगी, बरसात के दौरान मेडिकल की ज़रूरी आलात, सड़कों पर डी वाटरिंग पम्प समेत दीगर उमूर की मौजूदगी की निशानदही की गई है। चेयरमैन सोहराब गो टाउन लाला अब्दुल रहीम की जन्मदिन की खुशी पर पार्टी वर्कर UC 5 मास्टर मुखैरी की जानिब से एक पुरवकार तकरीब के कटिंग का इनेकाद किया गया। इस मौके पर चेयरमैन UC 5 अहमद जलैरी, जनरल काउंसलर मिर्जा खान और दीगर मौजूद थे। चेयरमैन सोहराब गो टाउन लाला अब्दुल रहीम की खादिम गोट आमद पर कारकुनान और इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन की जानिब से गुलपाशी करके पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सफूरा टाउन काउंसिल का 11वां इजलास वाइस चेयरमैन अब्दुल हक बलोच की सदारत में मुनक़िद हुआ है, जिसमें 5 करारदादों की मंजूरी दी गई है। अरकान काउंसिल की कसरत राय से डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी तश्कील दे दी गई है। 8वीं और 9वीं इजलास के रुदात की तौसीक, टाउन की हुदूद में मुख्तलिफ जगहों को नाम देने या नाम तब्दील करने, अरकान काउंसिल के लिए इजलास में शिरकत के लिए TANDA और रमज़ानुल मुबारक में महंगाई कंट्रोल करने के लिए ज़िला इंतजामिया को मुआवनत फराहम करने के लिए कमेटी तश्कील देने की करारदादें मंजूर की गई हैं। टाउन चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन मलिक आरिफ आवान, पार्लिमानी लीडर बल्दिया उस्मा कराची असद अमानुल्लाह, डिप्टी पार्लिमानी लीडर बल्दिया उस्मा कराची सलाहुद्दीन यूसुफजई, नादिरुर रहमान, कोऑर्डिनेटर महराज शाह और फोकल पर्सन खिजर हयात और बल्दियाती अफसरान ने UC 6 के वाइस चेयरमैन और रुकन टाउन काउंसिल सैयद मुख्तियार शाह के इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार करते हुए उनके घर जाकर लवाहिकीन से दिली ताज़ियत और मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की है। इस मौके पर टाउन चेयरमैन मलिक आरिफ आवान ने मरहूम की बल्दियाती खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि सैयद मुख्तियार शाह एक नेक, मुखलिस और अवाम दोस्त शख्सियत थे, जिन्होंने हमेशा इलाके के अवाम की बेलौस खिदमत की है। म्यूनसिपल कमिश्नर मंगोपीर टाउन अहमद यार की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें टाउन में बल्दियाती निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए इंतज़ामी कारकर्दगी में बेहतरी, तरक्याती कामों की रफ्तार तेज़ करने और अवामी सहूलियात के मयार को बुलंद करने पर गौर किया गया। मीटिंग के दौरान मंगोपीर टाउन में जारी तरक्याती मंसूबों, सड़कों की तामीर,
पार्क्स की देखभाल, सफाई और सुथराई, माली नज़्म व नस्क और अवामी शिकायत के अजाले से मुतालिक मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर इस बात पर जोर दिया गया कि तमाम अफसरान और अमला अपनी जिम्मेदारियां मुकम्मल दयानतदारी, मुनज़्ज़म, नज़्म व ज़ब्त और पेशा वराना अंदाज में सर अंजाम दें। अहम इंतजामी मीटिंग में एक वाज़े और जामे लाहे अमल भी तरतीब दिया गया, जिसके तहत तमाम महकमों को हिदायत दी गई कि वो आपस में मुकम्मल हम आहंगी के साथ काम करें, तरक्याती सरगर्मियों की मौसर निगरानी को यकीनी बनाएं और मनसूबों को मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल करें। मीटिंग में इस अज़्म का इजहार भी किया गया कि मंगोपीर टाउन को शहर कराची का एक मिसाली और मॉडल टाउन बनाया जाएगा। बहरिया टाउन कराची में जारी तामीराती सरगर्मियां इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि यहाँ सरमायाकारों और ख़रीदारों को मुकर्ररा वक्त पर प्रोजेक्ट्स की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। इसी सिलसिले में मारूफ रियल स्टेट वॉल स्ट्रीट प्रॉपर्टीज़ की जानिब से अपने जदीद और मुनफरिद प्रोजेक्ट HB83 जिना एवेन्यू में तामीराती सरगर्मियों को मज़ीद तेज़ कर दिया गया। स्टेटस क्या है, यहाँ के अंदर पॉजिटिविटी कितनी है, यहाँ के कमर्शियल कुछ चीज़ों में क्या हालात है, तो उन सब को लेकर हमने एग्री यूनियन एग्री गैदरिंग की एक गेट टुगेदर सेरेमनी की थी। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम अपना बहरिया के टॉप लाइन बिल्डर्स शरीक हुए और हमने अपने क्लाइंट्स को बुलाया, क्लाइंट्स को दिखाया प्रैक्टिकली कि यार आप देख सकें कि काम हमारा कंस्ट्रक्शन का अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रहा है। तो इस सब को लेकर हमने एग्री यूनियन एग्री गैदरिंग का एक सेरेमनी रखी थी। मुल्क भर में सोने की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत में 4,300 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसके बाद फी तोला सोना 4,93,662 रुपए का हो गया।